اردو کے سینئر صحافی ڈاکٹر مولانا عبدالقادر شمس قاسمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تعزیتی پروگرام بہار میں ان کے آبائی ضلع ارریہ میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں مقررین نے صحافی ڈاکٹر عبدالقادر کی صحافتی اور سماجی خدمات کے بارے میں تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر بہار صوبے کے AIMIM کے صدر اختر الایمان نے NN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقادر سے تقریباً 25 سال سے رابطے میں تھا اور ان کی خدمات صرف صحافت میں ہی نہیں بلکہ سماجی اور مذہبی میدان میں بھی اہم رہی ہیں۔ اس موقع پر مولانا عبداللہ سالم نے NN نیوز سے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقادر نے علاقے کے لیے بہت کام کیا اور انہوں نے اس علاقے کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ان کے جانے سے صرف اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ان کے مداح غمگین ہیں۔ پیش ہے ارریہ سے اس تعزیتی پروگرام کی محمد اسد کی یہ خاص رپورٹ۔ ہمارے عزیز مولانا بھائی صاحب، معزز علماء کرام، طلباء عزیز، سامنے بیٹھے مولانا حضرات، آج کے یہ درس تعزیتی اجلاس، لیکن ساتھ ساتھ ہم اظہار عقیدت کے لیے آئے ہیں، نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین کرام، ملت اسلامیہ نے بڑے بڑے حادثات دیکھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، پوری ملت اسلامیہ، پوری عالم انسانیت دم بخود تھی۔ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ بھی تھے، وہ تمام صحابہ تھے جن کے بارے میں حضور ایک شہید کے لخت جگر کو جو خود شہید ہو گیا اسے خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ صدر کو معلوم ہے مولانا عبدالرزاق مرحوم جنہیں کرمنل نے بدماشوں نے گولی ماری تھی، میں جو بات ہوش حواس تھا، ان کے پورے سینے کو، پورے پیٹ کو بندوق نزدیک سے مارا گیا تھا، چھکا سے کوئی چھلنی کر دیا گیا تھا اور ان کی بے ہوشی کے عالم ان کی لاش کو لے جایا جا رہا تھا ارریہ۔ جب بنان ندی کے پاس ان کی لاش گئی، انہوں نے ایک بار اپنا سر اٹھایا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور جان جانا کو سب کچھ کر دیا۔ آج اس شہید کے لخت جگر امام مولانا عبدالقادر شمس رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک شہید ہو گئے، جب بڑی بیماری میں کوئی لاحق ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو ہمارے شیخ حدیث کہہ سکتے ہیں کہ پیڑ سے بھی کوئی گر کے شہید ہو جاتا ہے، جب ٹرین سے کٹ کے شہید ہو جاتا ہے کہ کیسا ہے، ایسا مسلمان شہید ہوتا ہے۔ آج ہمیں شہید کے لخت جگر کو جو شہید ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ سنو، مولانا عبدالواحد صاحب چھوٹے رہے ہوں گے، میرے دل میں خیال آیا ان بچوں کو اپنے گھر لے چلے۔ میرے چھوٹے دادا الحاج حاجی معین الدین صاحب جو صاحب اولاد نہیں تھے، انہیں کہا گیا، انہوں نے اس کی اجازت دی۔ میں اللہ علیہ کی محبت میں یہ مجمع جمع ہوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ذمہ داروں سے، ان کے جو جانشین ہیں، کہ حضرت مولانا کے سلسلے میں جب آپ لوگ کوئی پروگرام کریں، پہلے اس کو مرتب کریں، اس کا نظام اچھا بنائیں، تاکہ آنے والا محنت سے آتا ہے، عقیدت میں آتا ہے، محبت میں آتا ہے، وہ مستفید ہو کر جائے، بات سمجھ میں آئے۔ بلکہ میں اس گستاخی کے لیے آپ تمام حضرات سے اور ذمہ داران سے معافی کی درخواست کروں۔ دوستو بزرگوں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، ان کی شخصیت نگاہوں سے روپوش ہو جاتی ہے لیکن ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں اور انسان کارناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنی شخصیات آئی چلی گئی، لوگ انہیں نہیں پہچانا، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے لیکن تاریخ میں ان کا نام تک نہیں۔ کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام آئے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں علماء کرام ہیں، دانشوران ہیں، سب ہیں،
अंबिया अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़्म थे, जो जिनको अल्लाह ताला ने अक़स्सुल ख़वास बनाया था, उनका मिशन, उनके कारनामे, उनकी मेहनत, उनकी काबिश, वो सब आज भी जिंदा है। और सबसे आखिर में हमारे आपके आका सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क़यामत तक के लिए नमूना है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इंसान को कामयाबी मिली है और क़यामत तक मिलेगी। इसी तरह कुछ यादें तो बातें मेरे दिल तमाम लेकिन जो अटल है और ये फैसला का निशान का अल्लाह के पास चले गए और हम सबको इसको मानना है। बहुत बड़ा डॉक्टर को खाली कास्मी, लेकिन नाम नहीं था, एक काम था, एक मिशन, एक तहजीब और जबरदस्त अंदाज में खूबसूरत और तेज रफ्तारी के साथ चलने वाला एक चैनल था, एक हाईवे था, जहाँ रुकने का, छुपने का और ठहरने को कोई कुछ नहीं था। ये अपनी जगह ढूंढता है। मतलब मोना के शख्स कास्मी तौबा और फुरजागो की सरहदी से जरूर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने पूरी तवानाई के साथ, हिम्मत और जुनून के साथ इस्लाम के रियासत, हिमायत और समाजत के साथ दुनिया इस्लाम के अंदर और लोगों के दिलों के अंदर सिक्का बनाया है, जो लोगों को बनवाया है तालाब है और बहुत बंद होने तक सलाते के लिए अब आखिरी कुछ अर्सा पहले अगर मौलाना आरिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बुजुर्गों को मेरे पास फोन आया कि तकरीबन 40 से 50 लोगों के ऑपरेशन का मामला है, बड़ा लंबा पड़ता है, दिक्कत होती है। जैसे कहा कि ये चाहता है ये चंदी के अंदर इसका नाम देंगे सुनान को डॉक्टर के ऊपर आया करते हैं रास्ता हुआ मैं को सारी से देखेंगे और दोनों बुजुर्ग तकलीफ का और सारा मामला 40 जगह ऑपरेशन सारी बातें हो गई। हजरत मौलाना डॉक्टर गुरबानी साहब से सरकार ये कहा करता था वो सैलाबों के सूफी इलाज हजरत मौलाना आरिफ साहब गुजरात में और मौलाना गुरबानी साहब दिल्ली में और सारा प्रोग्राम और बड़ी बात है, खूबियों की बात है। आज की बात था कि बच्चा के कारण अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई उनके पास एक गिफ्ट था, अल्लाह को वलीयत फरमाई उसका भी सलाहियत और इंसान आपको आज हमारे बीच है। लेकिन हौसला हमारे साथ है, हमारे पास एक जज्बा है कि मिशन को सरकारों को शक्ति तालीम करें और और आरिफ हुसैन साहब का नारिया है और उसी तरह से मौलाना गुरबानी साहब से इसका बड़ा जो काम करता है आप दीजिए आपकी को बताने की कोशिश कीजिए कि पूरा इलाका पूरा मजमा और आपके साथ है इंशाअल्लाह। जब तक पूरा आवाज है आपको कुरान तरीके से जब तक आवाज बन जाए तो किसी भी मैदान से पूरा इलाका आपके साथ होगा। अल्लाह ताला मजहूर को वली करता है जो सब खुदा करता है और अपनी तक इसके साथ को चाहते हैं तो खुदा तमाम जो को जीवन रखत में खुदा तमाम जो को जीवन रखत में उन्हें लोग बड़े से हंसते हैं पैगंबर है तो बात नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ एक ताज़ियती प्रोग्राम इनाक़ात किया गया मौलाना अब्दुल क़ादिर शम्स की याद में। उसमें शिरकत करने के लिए आए हमारे किशनगंज से मारूफ व मशहूर चेहरा जनाब अख्तर ईमान साहब, जो कि रियासती सदर भी हैं AIMIM के। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अक़ीदत किस हद तक थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए, और वो तफसील से इस बारे में बताएंगे और अब्दुल क़ादिर साहब की शख्सियत के बारे में भी हमें तफसील से बताएंगे। देखिए जनाब भाई डॉक्टर मौलाना अब्दुल क़ादिर शम्स कासमी साहब से मेरी तकरीबन 25 साल से ज़्यादा मुलाकात हुई है। वो हमारे बहुत ही दोस्त और मुरब्बी थे और सीमांचल के समाजी खिदमतगार एक मोतबर आलिम जानता सहाफ़ी और बसीरत रोज़ नज़रिए के मालिक इंसान थे। और उन्होंने इस इलाक़े में तालीमी, समाजी, अखलाक़ी और मुआशी तब्दीली की बड़ी कोशिश की, बड़े मंसूबे बनाए। अल्लाह तबारक तआला उनके नज़रियात को कामयाबी अता फरमाया और उन्होंने सूबाई सतह से लेकर मुल्की सतह पर मिल्लत के मसाइल की जो तर्जुमानी अपने कलम के ज़रिए से की है,
बहुत कम लोगों को ये दौलत मैसर होती है। आज के इस दौर ज़र्द सहाफ़त में हर सहाफ़ी लिखने को तैयार हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई जनाब अब्दुल कादिर शम्स कासमी ने अपने कलम को कभी बिकने नहीं दिया, बल्कि हक़ व सदाकत की पूरी पासदारी उन्होंने की, और उन्होंने जो नज़ीर अपने पीछे छोड़ी है हम सबों के लिए वो लायक़ तक़लीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने तरीक़ रहमत करे, उनके पसमानदगान को हम सबको सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह उसके बदल का रफ़ीक हम सबको अता फरमाए, और हमें अपनी मौत से भी अल्लाह। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं मिल्लत नगर फैक्ट्री चौक पे, जहाँ उर्दू सहाफ़त में बेबाकी से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जनाब अब्दुल कादिर शम्स की ताज़ियती इजलास मुनाक़िद हुआ। आइए उसमें उलमा किराम ने, सियासतदान ने शिरकत की। आइए हम मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से ये जानते हैं कि वो इस अब्दुल कादिर के बारे में अपना क्या इजहार ख्याल फरमाते हैं। जी मौलाना। देखिए, मौलाना अब्दुल कादिर शम्स साहब हमारे इलाक़े के लिए यहाँ की एक पहचान थे, यहाँ के आन बान शान थे। मौलाना की बहुत क़ुरबानी इलाक़े के लिए रही है, और उन्होंने बहुत आगे तक सपना देखा था कि यहाँ की गुरबत को, यहाँ के अफलास को, यहाँ की बेतालीमी को, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, और यही वजह है कि वो हर ख़ास व आम में मकबूल थे मौलाना। आज हमारा पूरा सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके जाने से बहुत ज़्यादा मग़मूम हैं। एक बहुत बड़ा खला सा पैदा हो गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उस खला को बेहतर से बेहतर बदल दे, और उनका जो मिशन, उनका जो सपना है, वो हम सब मिल कर के पूरे कर सकें। तालीमी मैदान में किस तरह के खिदमत अंजाम दिए हैं उन्होंने, इसके बारे में कुछ बताएंगे? तालीमी मैदान में आप जानते हैं कि सैकड़ों स्कूल का इस्टेब्लिश्ड उन्होंने किया, और ख़ुद जो इस इदारे के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है दावतुल कुरान फैक्ट्री चौक के अंदर, यहाँ पर मौलाना की बहुत कुर्बानी रही है इस इदारे की बुनियाद में, और इस इदारे को इस स्टेज पर लाने के लिए। और भी सिर्फ वो इस्टेब्लिश्ड नहीं, कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि एक उनकी हिम्मत होती थी। जो लोग काम करते थे इस फील्ड में, वो पीछे हाथ रख करके हिम्मत देते थे कि मौलाना आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई कहीं मकतब भी चलाता था, नूरानी कायदा पढ़ाता था, ABCD अगर की किताब अगर कोई पढ़ाता था, तो मौलाना उसको डेमोरलाइज़ नहीं करते थे। मौलाना उनको इंकरेज करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आदमी कुछ देर के लिए समझता था कि वाक़ईतन मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये मौलाना की ख़ास आदत थी, मौलाना का एक अच्छा अखलाक था। मौलाना की बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो उन्होंने अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से तालीमी मैदान में काम किया है।